ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੀ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਹੁ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੀਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਨਾਈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਹਿਬਰ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪੁੰਜ, ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਈ। ਸੇ ਜੰਤ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਜਨੀਆਂ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਆਪ ਤਰਿਆ, ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ, ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਵਲੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ, ਉਹ ਭਾਗ ਸੁਭਾਗ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਦੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ।
किताब का नाम है पूरी हुई करामात। ये किताब दे विच उन्हां जिक्र किया, कहंदे असल दे विच जिहड़ा चूना मंडी का इलाका है, इत्थे सारे जिहड़े वो व्यापारी लोग रहिंदे सन, उन्हां दे घर सी, उन्हां दियां दुकानां सी, उन्हां दा बाजार सी, जिन्हां दे वल्लों रत्नां दे बरीक टुकड़ियां दा व्यापार कीता जांदा सी। रत्नां नूं कट के उन्हां दे बरीक टुकड़े करके वो जिहड़ियां कणियां सी उन्हां दा व्यापार वो करदे सी। इसे करके इनू चूना मंडी कहा जाता सी। उन्हां कणियां नूं कहा जाता है चूनी। जिस तरह दे नाल सराफा बाजार है जां सब्जी मंडी है, इसे तरह ये सी चूना मंडी। ते इसे मंडी दे विच, इसे बाजार, इसे इलाके दे विच एक घर है सोढी गुरदयाल दास दा। ये जिहड़ी कुल है धन धन कुल, ये कुल है सोढियां दी कुल। ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृतमई बाणी दे विच ये कुल है जिस दा जिक्र वार वार आया है। रामदास सोढी तिलक दिया, वार वार इहदा इस कुल का जिक्र गुरबाणी दे विच आया। सोढियां दी कुल है। गुरदयाल दास सोढी उन्हां दा घर इत्थे चूना मंडी दे विच है। सोढी गुरदयाल दास दे घर एक पुत्र दा जन्म हुंदा है 1474 ईस्वी दे विच। इहदा नाम रखिया जाता है ठाकुर दास, बाबा ठाकुर दास। बाबा ठाकुर दास जी का विआह हुंदा है बीबी करमों दे नाल। उहदे गुणा करके, उहदे चंगे सुभाअ करके सौहरे परिवार दे विच उहने बड़ा जस खटिया, जिस करके उहनूं बीबी जसवंती भी कहा गया। इन्हां दे घर एक पुत्र दा जन्म होया 1500 ईस्वी दे विच। इहदा नाम रखिया गया हरदास। ते बाबा हरदास जी दा विआह होया अगे फिर माता दया कौर जी दे नाल। बाबा हरदास जी दे घर माता दया कौर जी दी पवित्र कुख तो 1534 ईस्वी दे विच धन श्री गुरु रामदास साहिब जी का आगमन होया। इन्हां ने अवतार धारिया। सो ये कुल है, ये पिता जी ने, ये धन माता जी ने, माता दया कौर जी, धन धन पिता बाबा हरदास जी। फिर अगे दादा जी का नाम बाबा ठाकुर दास, दादी का नाम बीबी करमों, पड़दादा जी का नाम है बाबा गुरदयाल दास, सोढी गुरदयाल। ये परिवार है, ये कुल है, ये खानदान है। 1534 ईस्वी दे विच जन्म होया। 2 साल बाद श्री गुरु रामदास साहिब जी की उम्र अजे केवल 2 साल की है। ते सतगुरु जी दे सत्कारयोग माता जी का अकाल चलाना हो गया, जिस तो बाद इन्हां दी परवरिश की जिम्मेवारी पिता बाबा हरदास जी के उपर आन पई। अजे कुछ समा लंघिया सी, बाल वरेस दे विच 7 साल की शरीर कारबला सी। 1541 ईस्वी दे विच कोई बिध बनी के सतगुरु जी दे पिता जी बाबा हरदास जी का भी अकाल चलाना हो गया। हुण ना मां है ना बाप है। जिहड़े ताए चाचे ने, जिहड़ा शरीका कबीला है, उन्होंने अनाथ कह के, यतीम कह के, अभागा कह के इन्हां दा तिरस्कार किया।
श्री गुरु रामदास साहिब जी का नानका पिंड है बासरके। इन्हां दा नानका पिंड है ते तीजे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी का ये जन्म स्थान है। बासरके उन्हां दा पिंड है, दादका पिंड है। ते जिस वेले 1534 ईस्वी दे विच श्री गुरु रामदास साहिब जी का जन्म होया, उस वेले फिर इस धरती दे उपर इस हयाती दे विच 4 पातशाहियां मौजूद ने। श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर साहिब की धरती ते ने तकरीबन 65 साल की शरीर करबला है। श्री गुरु अंगद देव जी नूं 2 साल हो गए ने श्री गुरु नानक देव जी की सेवा दे विच करतारपुर साहिब की धरती ते। इन्हां दी शरीर कारबला तकरीबन 30 साल की है। ते तीजे पातशाह श्री गुरु अमरदास साहिब ये बासरके पिंड दे विच ने। इन्हां दी शरीर कारबला उस वेले 55 साल की है। ते चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास साहिब इन्हां दा अवतार लाहौर की धरती ते हो चुके हैं। शरीर करके हयाती दे विच 4 पातशाहियां उस वेले मौजूद ने। जदों 7 साल की उम्र दे विच माता ते पिता दोवां दा साया सिर तो उठिया, उस वेले फिर नानके पिंड बासरके तो इन्हां दे नानी जी गए ने। ते नानी जी ने जाके फिर अपने दोहते दी परवरिश की जिम्मेवारी संभाली है। निर्बाह दे वास्ते, गुजरान दे वास्ते घुंगणियां बना के दित्तियां, चनियां नूं उबाल के घुंगणियां तैयार करके कशाबे दे विच निक्की जी टोकरी दे विच रख के दित्तियां। इतिहासकारां जिक्र किया कि पहले दिन रावी दे किनारे ते गए, उथे पानी दे विच टुबकी लगा के स्नान करके कुछ भले पुरख जिहड़े वो बाहर निकले। उन्होंने इन्हां तो वो घुंगड़ियां जिहड़ियां वो खरीद लईआं। ते इस तो उपरंत फिर जिहड़ा रूटीन बन गया, नेता प्रति जांदे ने। जिस उम्र दे विच खेडना कुदना है, जिस उम्र दे विच पढ़ाई करनी है, इस उम्र दे विच अपनी निर्बाह की जिम्मेवारी जिहड़ी है वो सारी श्री गुरु रामदास साहिब जी की अपने उपर आन पई। जन्म तो लैके बचपन तो लैके सुभाअ दे विच दया, सुभाअ दे अंदर निमरता ते तरस इन्ना को है। कहंदे शायद ही वो कोई दिन होवे जिदे कोई गरीब, कोई लोड़वंद जां कोई साधु फकीर इन्हां नूं ना मिलिया होवे जिहदे तो बिना पैसे लए बुक घुंगणियां दा भर के इन्हां ने उन्हां नूं छकण दे वास्ते ना दिता हो। पर इत्थों दे जिहड़े हालात सी लाहौर दे जिहड़ा शरीका कबीला है, क्योंकि वो तिरस्कार करन लग पए, हमदर्दी जताउण दी बजाए, सहायता करन दी बजाए, बांह फड़न दी बजाए, उन्हां दे वल्लों इहनूं बदकिस्मत कह के, अभागा कह के श्री गुरु रामदास साहिब जी नूं जदों तिरस्कारिया गया ते नानी जी ने विचार कीती कि इत्थे रहण दी बजाए मैं अपने दोते नूं नाल लैके अपने पिंड बासरके चली जावां। जिस करके अपनी धी ते अपनी जवाई दे घर नूं ताला ला के जिंदरा मार के इत्थों फिर इन्हां दे नानी जी अपने दोते नूं नाल लैके बासरके पिंड वापस चल के आई। इत्थे आए ते इत्थे आके जिहड़े मामे मामियां ने उन्हां ने कोई बांह नहीं फड़ी,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ कि हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। ये जिहड़ा बचन है ये बिल्कुल श्री गुरु रामदास साहिब जी दे अपने जीवन दे विच, बचपन दे विच जिस तरह की दशा रही, जो कुछ उन्होंने अपने आप दे विच महसूस किया, जिहड़ी पीड़ा मानसिक तौर ते श्री गुरु रामदास साहिब जी ने हंडाई। एक ते बचपन दे विच ही माता ते पिता जी दा अकाल चलाना हो जाना, माँ बाप दा जिहड़ा विछोड़ा है, दूजा फिर सारे जिहड़े ताए चाचे ने उन्हां दे वल्लों तिरस्कार कर देना, किसी दा बाह ना फड़ना ते अपनी गुजारे दे वास्ते गलियां दे विच घुम के होका दे के घुंगड़ियां वेचनियां। इस तरह दे ये जिहड़े हालात बने, इन्हां दे विचों अपने अनुभव दे विचों जो उन्हां महसूस कीता, फिर उही इन्हां बचनां दे विच श्री गुरु रामदास साहिब जी ने ये उच्चारण किया कि हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। इत्थे बासरके दी धरती दे उपर श्री गुरु रामदास साहिब जी दा मिलाप धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी दे नाल होया, क्योंकि श्री गुरु अमरदास साहिब उस वेले तक खडूर साहिब की धरती ते ने श्री गुरु अंगद देव जी की सेवा दे विच जदों किते वापस आए, आके मिले, ते उस वेले ये जिहड़ा मिलाप श्री गुरु अमरदास साहिब जी दे नाल होया, उन्हां अपने वल्लों हर तरह की मदद करन दा भरोसा सतगुरु जी की नानी जी नूं दिवाया। इस तो उपरंत 1552 ईस्वी दे विच श्री गुरु अंगद देव जी ने श्री गुरु अमरदास साहिब जी नूं गोइंदवाल नगर वसाउण दे वास्ते आख्या, ते नाले भी बचन किया कि अपने परिवार नूं बासरके पिंड तों गोइंदवाल नगर दे विच जाके उत्थे ही तुसी निवास करना है परिवार समेत। इस करके श्री गुरु अमरदास साहिब जी जदों अपने परिवार नूं लैके जाण दी वास्ते आए, ते जिस वेले परिवार नूं लिजाण लगे, सारा जिहड़ा पिंड है वो श्री गुरु अमरदास साहिब जी नूं विदा करन दे वास्ते नाल चल के आया। ते उसे वेले श्री गुरु रामदास साहिब जी ने भी ये मन बना लिया कि मैं भी नाल ही गोइंदवाल साहिब जाके निवास करां, क्योंकि उस वेले तक श्री गुरु रामदास साहिब जी जवान हो चुके ने, 18 साल की उम्र हो चुकी है, जिस करके अपनी नानी दे नाल श्री गुरु रामदास साहिब जी भी गोइंदवाल साहिब आके वस गए, पर अपनी किरत उत्थे भी यही रखी। इत्थे फिर श्री गुरु अमरदास साहिब जी नूं गुरता गद्दी मिली। श्री गुरु अंगद देव जी ज्योति जोत समाए,
श्री गुरु अमरदास साहब गुरता गद्दी ते विराजमान होए ते श्री गुरु रामदास साहब जी जिथे फिर अपनी किरत करदे नाल श्री गुरु अमरदास साहब जी दी नेता प्रति संगत करन लग पए ते नाल नाल फिर सेवा करन लग पए। इथों शुरुआत हुंदी है सेवा ते सिमरन दी बरकत दी। जिहड़ी सेवा कीती नाल सिमरन कीता फिर इसे बरकत दे नाल जिन्हां नूं बचपन दे विच यतीम जां अनाथ कह के तरसकारिया गया उन्हां नूं श्री गुरु अमरदास साहब जी की संगत दे विच रह के ये मान प्राप्त होया कि भाई गुरदास जी ने ये बचन कह के बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। सोढ़ी पातशाह शब्द वरते ते ये जिहड़ी सारी बरकत है वो सेवा ते सिमरन दी, जिहड़ी सेवा ते सिमरन दी कमाई गोइंदवाल साहब की धरती ते रह के 21 साल तक श्री गुरु रामदास साहब जी ने की। धन श्री गुरु अमरदास साहब जी ने अपनी धी दे वास्ते श्री गुरु रामदास साहब जी नूं योग जानदे होए बीबी भानी जी का आनंद कारज श्री गुरु रामदास साहब जी दे नाल कीता। इस तो उपरंत 1474 ईस्वी दे विच जिस वेले श्री गुरु अमरदास साहब जी ज्योति जोत समाए उन्होंने गुरता गद्दी श्री गुरु रामदास साहब जी नूं सौंपी। गुरता गद्दी ते विराजमान हुए 1474 तो लैके 1574 तो लैके 1581 ईस्वी तक गुरता गद्दी ते विराजमान रहे। ये धन श्री गुरु रामदास साहब जी का जीवन है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 30 रागां दे विच बाणी दर्ज है। 679 तकरीबन शब्द ने। परिवार दे विच 3 अगे फिर सपुत्र ने, वड्डे बाबा पिरथी चंद, छोटे उन्हां तो छोटे बाबा महादेव ते सब तो छोटे ने पंचम गुरदेव धन श्री गुरु अर्जन देव जी। ये श्री गुरु रामदास साहब जी का परिवार है। ते बाहरों आवाज़ मैं क्या बहुत ज़्यादा आ रही है, इस करके समाप्ति कर देनी चाहिए है क्योंकि इहदे नाल एकाग्रता भी नहीं बनती। सो इस करके हाँ जी कर दिए। आवाज़ बहुत आ रही है। हाँ नहीं आवाज़ बहुत आ रही है। पर इत्थे श्री गुरु रामदास साहब सतगुरु जी का जिहड़ा जीवन है इहनूं 3 पड़ावां दे विच आपां वंड सकदे हां। एक बचपन तो लैके गोइंदवाल साहब की धरती तक पहुंचण तक दा है। दूजा जिहड़ा है वो गोइंदवाल साहब की धरती ते आके श्री गुरु अमरदास साहब जी की संगत दे विच रह के सेवा ते सिमरन की कमाई दा है। ते तीजा जिहड़ा पड़ाव है वो जिहड़ा गुरता गद्दी दा काल है, गुरियाई दा जिहड़ा समा 7 साल दा। पर इहदे विच देखो कि सेवा ते सिमरन की वडियाई किन्नी है, इहदा महात्म किन्ना है। जिहड़ा अमृतमई बाणी दा पावन बचन आपां पढ़दे हां, नीचा है ऊच करे मेरा गोबिंद काहू ती न डरै।
ये जिहड़े बचन कहे कि नीवियां नूं उच्चे बनाउण वाला मेरा वो अकाल पुरख वाहिगुरू गोबिंद परमात्मा है, जिहड़ा फिर किसी दा डर नहीं रखदा, किसी दा दबाव नहीं रखदा, किसी दा वो भय नहीं मनदा। ते इसे करके फिर श्री गुरु रामदास साहिब जी नूं कित्थों जिहड़ा चक के जिस वेले कहा जांदा सी, क्योंकि जदों बीबी भानी जी का विआह श्री गुरु रामदास साहिब जी दे नाल श्री गुरु अमरदास साहिब जी ने किया, उस वेले जिहड़े बहुत सारे लोग ऐसे सी जिन्हां ने श्री गुरु अमरदास साहिब जी नूं जाके इत्थों तक बोल कहे सी, इत्थों तक आख्या सी कि देखो तुसी अपनी धी दा पल्ला जिन्हां नूं पढ़ाया है उहदा कोई घर घाट नहीं, उहदा कोई पक्का थां टिकाणा नहीं, उहदा कोई गुजरान दा प्रबंध नहीं है, ते इहदे बावजूद श्री गुरु अमरदास साहिब जी ने लोकां दी परवाह नहीं कीती। ते श्री गुरु रामदास साहिब जी ने जिस तरह दे नाल सेवा ते सिमरन दी कमाई नूं कीता, लोक लाज दी परवाह जिहड़ी है वो श्री गुरु रामदास साहिब जी ने भी नहीं की, क्योंकि जदों गोइंदवाल साहिब दी धरती ते बौली साहिब दी कार सेवा जिस वेले चलदी पई सी, इस वेले श्री गुरु रामदास साहिब जी दे इन्हां दे शरीके दे विचों लाहौर तो कुछ लोग जिहड़े वो चल के गोइंदवाल साहिब आए, लाहौर तो हरिद्वार जा रहे सी ते गोइंदवाल साहिब वाला ब्यास दरिया का घाट सी, किनारा सी, जिथों दरिया पार करके जाना सी, ते इत्थे घाट ते आए ते इन्हां कहा कि अपना अपने हरदास दा पुत्र है इत्थे गोइंदवाल नगर दे विच जिहड़ा इस वेले धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी का दमाद है, उन्हां दा जवाई है, चलो अज उहनूं चल के आपां मिलदे हां ते अज दी रात आपां उहदे कोल रुकांगे। पर यह साडी सुभाविक समाजिक प्रवृत्ति है, जदों किसी बंदे का कोई स्टेटस बन जाता है उदों उहदे स्टेटस नूं मुख रख के हर कोई रिश्ता उहदे नाल जोड़न दा यतन करदा है। ते जिस वेले कोई इंसान किसी पावर दे विच नहीं, किसी पदवी दे उपर नहीं, उहदी घर दे विच उहदी गरीबी है, उस वेले हर कोई उहदे तो कन्नी कतराउंदा है, उहदे तो पासा वटदा है। ते कुछ साल पहला इन्हां ने भी इसे तरह कीता सी, जिस वेले इन्हां दे नानी श्री गुरु रामदास साहिब जी दे नानी जी अपनी धी ते जवाई दे घर नूं जिंदा मार के इन्हां नूं लैके बासर के नूं तुरन लगे सी, ते इसे शरीके दे लोकां दे विचों किसी ने आके श्री गुरु रामदास साहिब जी की बांह फड़ के ये नहीं सीखिया कि ये साडे हरदास दा पुत्र है, ते इहदी परवरिश करनी, इहदे पालन पोषण करन दी जिम्मेवारी जिहड़ी है वो साडी है। उस वेले किसी ने नहीं सी आख्या, पर जिस वेले श्री गुरु अमरदास साहिब जी जगत गुरु दे घर दे नाल एक संबंध जुड़दा है, एक नाता जुड़दा है, ते उस वेले यही लोग कहंदे ने कि साडे हरदास दा पुत्र इत्थे है, उन्होंने अज मिल के जावांगे ते अज दी रात आपां उहदे कोल रुकांगे। ये सुभाविक समाजिक प्रवृत्ति पहला भी इसे तरह सी ते हुण भी इसे तरह है। बड़ियां ऐसियां मिसालां जिहड़ियां वो साडे अज दे समाज दे विचों साडे सामने ने। कुछ ऐसियां घटनावां जिवें सरदूलगढ़ शहर दे विच दो बच्चियां दा जिक्र आया, भैन भरा निक्के निक्के 7-7 8-8 साल उम्र है, इकल्ले वो रहिंदे ने, घर दी छत डिगण वाली है, उदों तक कोई
ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕੱਟਦੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ, ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਢੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਢੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਬਚੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ, ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੈਂਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੈ,
पर जदों अपनी धी अपने पुੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ करना होवे ते ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ शराब इसे करके ਵਰਤਾਉਂਦਾ है कि जे शराब ना पियाई ते लोग की कहणगे। अपनी लोड़ तो वध के अपनी चादर तो पैर बाहर पसार के अपने वित्त तो वध के करजा चक के जां जमीन वेच के जां गहने धर के लोड़ तो ज्यादा खर्चा अपनी धी जां पुੱਤ दे विआह ते बंदा इसे करके कर जांदा है कि जे ना कीता ते लोग की कहणगे। मुड़ के भावें सारी जिंदगी उस करजे दे बोझ दे थल्लों निकलिया जावे ते भावें ना निकलिया जावे। ये सब तो वड्डी समस्या साडे वास्ते यही खड़ी हुंदी है। पर धन श्री गुरु रामदास साहिब जी का जिहड़ा जीवन है वो साडे सामने मिसाल है कि सेवा ते सिमरन की जिहड़ी कमाई है, सेवा ते सिमरन की जिहड़ी दात है, ये किस तरह दे नाल बंदे नूं फर्श तो चक के ते अर्श तक पहुँचा दिंदी है। जिवें धन श्री गुरु रामदास साहिब जी नूं पहुँचाया, जिन्हां नूं एक वेले अनाथ अभागा जां यतीम तक शब्द जिन्हां दे वास्ते वरते गए, उही धन श्री गुरु रामदास साहिब जदों 1474 ईस्वी दे विच गुरता गद्दी ते विराजमान होए ते उस वेले फिर श्री गुरु रामदास साहिब जी की सिफत दे विच ये जिहड़े बचन भट्ट साहिबान ने कहे कि धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी हुई करामात आप सिरजनहारै धारिया। अगे ये बचन कहे कहंदे सिੱਖੀ अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। पार ब्रह्म कर भाव सिखां ते संगतां ने श्री गुरु रामदास साहिब जी नूं पार ब्रह्म परमेश्वर जान के परमात्मा जान के इन्हां दे चरनां दे विच मत्था टेकिया, इन्हां नूं नमस्कार कीती। जिन्हां नूं बचपन दे विच अभागे जां बद किस्मत आख्या गया, उन्हां नूं सेवा ते सिमरन दी बरकत दे नाल फिर इन्नी वड्डी पदवी मिली कि लोग उन्हां दे चरनां दे विच उन्हां नूं रब जान के झुकदे मत्था टेकदे ने। ते जिहड़े श्री गुरु रामदास साहिब जी दे घर नूं बचपन दे विच ताला वजिया, जिंदा वजिया, जिंदरा लग्या, जिहड़े घरों बेघर होए, ते उही धन श्री गुरु रामदास साहिब सेवा ते सिमरन दी बरकत दे नाल उस पदवी दे उपर पहुंचे कि जिन्हां दे जिहड़े बचपन दे विच आप किसी टिकाणे दे वास्ते जां अपने भोजन दे वास्ते जिहड़े मुहताज सी उस वेले, उही श्री गुरु रामदास साहिब जी का घर वो लखां लोकां दे वास्ते शरण दे रूप दे विच भी लखां लोकां नूं रहण दे वास्ते उत्थे छत भी मिलदी है ते लखां लोकां नूं रोज़ाना छकण दे वास्ते उत्थे भोजन भी मिलदा है। फिर सचखंड श्री हरमंदर साहिब धन श्री गुरु रामदास साहिब जी का ऐसा घर बनिया कि लखां लोग उत्थे आके रहिंदे भी ने ते उन्हां नूं छकण दे वेले 24 घंटे छकण दे वास्ते उन्हां नूं 24 घंटे 8 पैर उत्थे भोजन भी मिलता है। ये उही कमाई जिहड़ी श्री गुरु अमरदास साहिब जी दे हजूर रह के धन श्री गुरु रामदास साहिब जी ने कीती। ते इहदे तो एक गल असीं भी अपने पल्ले बन्नी है कि जे असी गुरु नूं समर्पित हो के सेवा ते सिमरन दी कमाई जे असी करांगे ते ये गल पक्की है कि जो कुछ असी अपने जीवन दे विच कदे सोचिया भी नहीं, जिस दी असी कदे कल्पना भी नहीं कर सकते, वो दातां भी सतगुरु साडी झोली दे विच पा दिंदे ने। ये जिहड़ी प्रेरणा धन श्री गुरु रामदास साहिब जी के जीवन तो सानू मिलती है। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां जी, होइयां भुलां दी खिमा सारे प्रबंधक साहिबान दा
सारी संगत का कोटान कोट धन्नवाद है ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का शुकराना जिन्हां ने अपनी हजूरी दे विच आप बुलवा के ये सेवा लई। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।